Welcome to brand new show Face to Face. This is an initiative of DME Media School. DME Media School is part of Delhi Metropolitan Education, DME, and DME has three schools besides DME Media School. The other two schools are DME Law School and DME Management School. We offer four academic programs which include BA LLB, BBA LLB, BBA, and BJMC. DME is one of the most prominent institute affiliated to Guru Gobind Singh Indraprastha University. It has made a mark in every respect, be it co-curricular, extracurricular, or curricular activities. And particularly if we talk about the infrastructure and the facilities which have been developed on the DME campus, since the time this COVID-19 struck, we try to rise up to the occasion and we try to conduct the online classes to finish the course in the last semester. And thereafter, during the summers, we also conducted the internship online. And after that, I mean, when this new session is started, and I must also mention this, that the new semester has started, the teaching in the new semester has started on the 4th of August. That is much ahead other institutions could think of, and we adopted a two-way strategy wherein the teachers produced the video lectures in every paper, and then during the classes we are conducting the tutorial classes so that whatever queries are there by the students, all those can be addressed. So let us have a look on the DME's digital campus. DME has embraced digital paradigm shift by adopting technology-based learning. Unlike other colleges, we adopted a two-step strategy. In step 1, teachers would be preparing the videos, students would be watching them. In step 2, the student would be coming to the tutorial, clarifying the doubts, making the presentations, and discuss with the teacher. At DME, we have invested in the best in the class academic ERP, which allows us to have a 360-degree robust communication amongst all the stakeholders, students and faculty members. DME's virtual learning mechanism is no less than real-time classroom teaching, wherein the students are provided the pool of e-learning resources in the form of PPTs, video lectures, and online classes in a very student-friendly environment. There is no need of mental blocks. Online teaching is as effective and interesting as offline teaching. Let the students enjoy this new mode of education. In DME, we believe in quality education. We take care of our students. We want to see them happy. Mental and emotional health are one of the most challenging issues of present times. DME Mentoring Cell takes care of that. Not just this, we go beyond academic curriculum to instill the most important employability skills in our students. Welcome back to Face to Face. And as I was telling you already, that this is a program which has been initiated by DME Media School. And to tell you something more about DME Media School, we believe in all-round grooming of the students, and that is how we conduct different kind of activities. And the most prominent one is the international conference that we have been organizing for the last 3 years. The third edition happened this year only in 2020. Initially, we planned it in the month of March, but due to this COVID-19, it could not happen that time. Subsequently, we planned it in the month of June in the online mode. And this turned out to be the world's first digital live conference, which continued for 10 days. And we could connect from with the scholars from different parts of the world. Besides this, last year we also organized the International Film Festival SIFI, and this year we are going to have the second edition of SIFI. And then we organized BG Varghese lecture series. This lecture series has been set up in the name of the renowned journalist BG Varghese, and we hold one special lecture every month. And in this we invite distinguished scholars from different fields
fields of media to speak on their areas of expertise and interact with the students. And now coming to this particular program, Face to Face, this is a program which is by its very nature, or if I talk about the genre, this is a chat show. And in this, the dean is talking to three students, and since I'm the dean, I'm talking to three students in each episode. And these three students have been drawn from different semesters. At the moment, we have three batches, though the new year, the new batch admission have not taken place yet. But there is an outgoing batch which has not taken up exam due to some policy issues, and also that we treat as an outgoing batch. And then there is a third year, wherein the students who are there in the fourth semester have been promoted to the fifth semester. And then there are second year students who have been promoted from second semester to third semester. So in today's episode also, these three students are there. But before proceeding further, let us have a look as to who all these three students in this episode. So welcome again to Face to Face. Now everybody has seen that who are these three bright students with us in this episode. So we have with us Saket Tejasvi, who is from the outgoing batch. Then we have Geetanjali Yadav, who is from third year. And then we have Shreya Singh, who is from second year. So to begin with, as it's customary that we start talking to the senior most person, so we will start interacting with Saket. And Saket, as we have seen in your AV and otherwise also, I and other faculty members are aware as to what all you are into. You are considered a very active person on the campus of DME, and you are always participating in whatever is happening on the campus. But then we would like to listen from you, what are your passions, inclinations, and interests? सर नमस्ते सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये मौका दिया। ये मेरे लिए मतलब एक अलग से एक नई एक्सपीरियंस इसमें मिलने वाला है मुझे, जो मुझे आज तक इस तरह से कभी मैंने फेस नहीं किया था। सबसे पहले तो सर मुझे लिखना बहुत पसंद है। वैसे मैं हिंदी बेल्ट से हूँ, मैं बिहार से हूँ, मधुबनी से, तो मुझे हिंदी में मैं लिखता हूँ, जैसे क्रिएटिव राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, न्यूज़ राइटिंग, क्योंकि इसके ज़रिए मैं न्यूज़ फील्ड में जा सकता हूँ। अब फाइनली मुझे न्यूज़ में जाना है, टेलीविज़न न्यूज़ में, तो मैं भी इसके लिए मैं अभी सटीक बात करके चैनल, मेरा एक यूट्यूब चैनल है जो मैं और मेरा एक फ्रेंड है आदर्श, उसके साथ हम दोनों ये मिलकर ये रन कर रहे हैं, जिसमें मुझे काफ़ी सारी चीज़ें करने का मौका मिल रहा है। जैसे मैं वहाँ पे वीडियो एडिटिंग भी करता हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी करता हूँ, मैं खुद थंबनेल डिज़ाइन करता हूँ, और ख़ास करके मुझे वहाँ पे लिखने में ज़्यादा वहाँ पे मुझे फ़ायदा इस तरह से मिल रहा है, क्योंकि यूट्यूब पे क्या है कि हमें ऑडियंस को रिटेन करना पड़ता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा देर तक ऑडियंस को इंगेज करके रखना पड़ता है हमें, तो इस वजह से रचनात्मकता मतलब लानी पड़ती है लिखावट में। तो ये चीज़ मुझे यूट्यूब से ज़्यादा सीखने को मिल रही है। और अभी जैसे अभी बिहार में इलेक्शन होने वाला है सर, तो अभी मैं और मेरी टीम जा रहे हैं कि फील्ड में कवर करें बिहार का इलेक्शन और यहाँ की जो स्थानीय मुद्दा है उसको उठाएं। तो अभी मैं इसी पे काम कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं जैसे कि इसमें भी दिखाया गया कि मैं एक स्केच आर्टिस्ट भी हूँ। मैंने सर खुद से स्केच बना के प्रियंका चोपड़ा, तिग्मांशु धूलिया और नसरुद्दीन शाह सर, सईद अंसारी सर जो कि आज तक के हैं,
इन सबको का मतलब प्रियंका चोपड़ा और नसरुद्दीन शाह को तो श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में मौका मिला गिफ्ट देने का स्केच बनाकर। बाकी मुझे कॉलेज मतलब कॉलेज ने ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं उन सबसे मिल सकूं, उनको अपना ये क्रिएटिविटी दिखा सकूं। तो ये सब चीजें करता हूँ। इसके अलावा सिंगिंग मेरा पैशन है सर। तो तुम क्या लिखते हो और क्या पढ़ते हो? इफ यू कैन टेल अस मोर अबाउट दैट। सर अभी ज्यादातर मैं जैसे कोई करंट मुद्दा हो तो उसके लिए वीडियो बनाना होता है, तो उसी पे लिखता हूँ सर। हालांकि पढ़ाई अभी क्या जब से पढ़ाई क्या करते हो? मतलब व्हाट काइंड ऑफ रीडिंग और व्हाट काइंड ऑफ बुक्स, व्हाट काइंड ऑफ लिटरेचर यू रीड? सर बुक्स में ज्यादातर नहीं पढ़ता, मतलब पढ़ने का तो बहुत मन करता है लेकिन ज्यादा देर तक नहीं पढ़ पाता हूँ। तो अभी वो चीज़ तो ट्राई कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं ज्यादातर न्यूज़ पढ़ता हूँ, क्रिकेट से रिलेटेड या फिर न्यूज न्यूज पॉलिटिक्स से न्यूज जो तुम पढ़ते हो या जो न्यूज रिसीव करते हो, ऑन व्हाट प्लेटफॉर्म डू यू इट एंड हाउ यू डू इट? सर डिजिटली पढ़ता हूँ, जैसे ललन टॉप को वीडियो के थ्रू, ललन टॉप, द वायर, न्यूज़ लॉन्ड्री, इन सबको देखता हूँ और कुछ आर्टिकल्स पढ़ लेता हूँ। हालांकि अभी जब से गांव आया हूँ तब से यहाँ पे बिजली का भी, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं मैं थोड़ा दिक्कत है यहाँ पे, तो वो सब सारी चीज़ें हैं। प्लस यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है, इस वजह से अभी ज़्यादा देर तक वीडियो में सर्फ नहीं कर पाता हूँ। बाकी जितना हो सकता है मैं भी कर रहा हूँ सर। इसलिए अभी जो सटीक बात का वो चैनल है वो भी अभी प्रॉपर नहीं हम चला पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। तो जो तुमने अपना जो तुम्हारा इंटरेस्ट है आर्ट में या ड्राइंग में, जो स्केच बनाते हो और क्या करते हो? मतलब और कोई चीज ड्रॉ करते हो कि सिर्फ स्केचेस बनाते हो? नहीं सर, मैं पॉलिटिकल पॉलिटून्स बनाता हूँ, कैरिकेचर बनाता हूँ सर। आई कैन फर्स्ट में भी मेरा रिसेप्शन पे मैंने एग्जिबिट किया था अपना कार्टून, अगर आपको याद हो तो सर। तो ये करता हूँ। इसके अलावा सिंगिंग मेरा पैशन है। तो ये जो तुम्हें स्केचिंग की या कैरिकेचर बनाने की, ये कहाँ से शुरू हुआ? कहीं तुमने सीखा या कहाँ से प्रेरणा मिली इसकी? नहीं सर, सीखा नहीं, बस ऐसे ही खुद से बना बना के सर। ऐसे कहीं पे प्रोफेशनली मैंने कोई कोर्स नहीं किया है, बस ऐसे ही खुद से बना बना के। बचपन से इंटरेस्ट था तो घर पे भी मैं बनाता रहता था, तो ऐसे ही करके फिर बीच में मैंने काफी साल तक इसे छोड़ दिया था। 12th के बाद फिर से मैंने इसे शुरू किया है सर। नहीं तो कैसे, अगर तुमने कहीं से ट्रेनिंग नहीं की तो तुम्हें ये कैसे, कैसे इंश्योर करते हो, कैसे सुनिश्चित करते हो कि तुम जो बना रहे हो वो बिल्कुल परफेक्ट है, या जिसको तुम दे रहे हो, जो तुमने एमिनेंट पर्सनैलिटीज की, सेलिब्रिटीज की बात की, उनको वो कितना पसंद आ रहा है? ये तुम्हें कैसे, मतलब कहीं कोई आर्ट की प्रॉपर ट्रेनिंग तो चाहिए आई बिलीव। सर मैंने अभी तक कोई ट्रेनिंग तो वैसे नहीं लिया, लेकिन परफेक्ट तो नहीं कह सकता, लेकिन अपने लेवल पे मुझे जितना बेस्ट हो पा रहा है मैं मेहनत करके उनको देता हूँ। और काफ़ी केसेस में मुझे उधर से भी अच्छा रिस्पांस मिला। जैसे तिग्मांशु सर ने मुझे अकेले में बुला के अप्रिशिएट किया था, नसरुद्दीन शाह सर ने खुद तारीफ करी थी, प्रियंका चोपड़ा मैम ने की थी। तो ये सब, इन्हीं सब से प्रेरणा मिलकर मैं बस कोशिश करता हूँ। ऐसा कुछ ट्रेंड नहीं है। राइटिंग की बात को करूँ, जैसे तुम अपने चैनल के लिए भी कह रहे हो, तो बेसिकली किस तरह की पॉलिटिकल राइटिंग्स करते हो या सोशल इश्यूज पे लिखते हो? किस तरह के इश्यूज पे लिखते हो? मैं पर्सनली ज्यादा सोशल इश्यूज पे लिखता हूँ। जैसे उदाहरण के लिए कुछ, जैसे रिसेंटली लिखा हो कुछ इश्यूज के बारे में? हाँ सर, रिसेंटली मैंने वीडियो, ये मजदूर का जो पलायन हुआ था उस पर भी मैंने वीडियो बनाया था। तो यही सब वीडियोस में बना, इसी सब टॉपिक्स पे मैं लिखता हूँ सर ज्यादातर। और पोएट्री की जहाँ तक बात, जी सर, पोएट्री की जहाँ तक बात हुई तो मैंने सर हिंदी दिवस में भी पोएट्री किया था। तो उसमें मैंने एक बार हिंदी दिवस में मैंने रेप पे किया था, जो रेप बढ़ रहे हैं उस पे पोएट्री लिखा था। तो वो इसके बाद मैंने जो अभी जर्नलिज्म की जो हालत है सर, ज्यादातर खबरें नहीं आ रही हैं, तो इस पे मैंने किया था कि किस तो क्या है, तुम खबरों को कैसे जो आज खबरें आती हैं टीवी चैनल्स पे, हाउ डू यू डिफाइन, कैसे? सर पहले न्यूज छप के बिकती थी, अब बिक के छप रही है सर। दिक्कत ये है। नहीं ये तो ठीक है, ये तो तुम्हारा ऑब्जर्वेशन हुआ, बट इफ यू कैन पिन पॉइंट व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स यू फाइंड इन टीवी न्यूज दीस डेज? सर न्यूज कहीं ना कहीं दब रही है, शोर शराबा ज्यादा उभर के आ रहा है बाहर। इंटरटेनमेंट का एक जरिया बनता जा रहा है न्यूज, यही दिक्कत है। अच्छा, जो तुमने अभी बात की
अपनी पोइट्री की, तो किस तरह जी, की पोइम्स है, कुछ यहाँ तुम रेसाइट कर सकते हो? हेलो सर, आवाज़ नहीं आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि जो तुमने पोइट्री की बात की, तो तुमने कोई रिसेंटली कोई पोइम लिखी हो, उसको क्या सुना सकते हो? नहीं सर, सॉरी सर, यहाँ तो नहीं है। मैं अभी बिहार में हूँ सर। कोविड की वजह से मैं बिहार आ गया हूँ, तो सारा मटेरियल मेरा वहाँ पे है सर। अरे तो बिहार तो देश की सबसे महत्वपूर्ण जगह है, तुम देश की सबसे महत्वपूर्ण जगह पे हो। यस सर। ठीक है, तुम्हारा इंटरेस्ट सिंगिंग में है, तुमने कहा, तो क्या गाना गाते हो, क्या मतलब किस तरह की सिंगिंग करते हो? बॉलीवुड गाता हूँ सर मैं ज़्यादातर, और यहाँ का जो मैथिली है, जो मेरा हम्म मदर टंग है मैथिली, उसमें भी गा लेता हूँ। लेकिन ज़्यादातर मैं बॉलीवुड गाना गाता हूँ। नहीं, लेकिन मैथिली तो ज्यादा अच्छी चीज है वो, मतलब रूट से जुड़ी हुई चीजें हैं, तो शुड ऑलवेज बी प्रेफर्ड। तो मैथिली में कुछ गा के सुना सकते हो हमें? सर मैथिली में हमर मनक गाम में ईशोर भ गेले, हमर मनक गाम में ईशोर भ गेले, अहाँ एलियै अन्हार में इजोर भ गेले, अहाँ एलियै अन्हार में इजोर भ गेले। सर ये अभी इतना ही याद है सर। हिंदी अगर आप कहें तो सुना सकता हूँ। ठीक है, हिंदी सुनो। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। फिर क्यों संसार की बातों में भीग गए तेरे नैना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तुम तो अच्छा गाते हो, तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं गाते? सर गाया हूँ सर, मैं अलंकार में था सर, म्यूजिक सोसाइटी में। Chalo, moving on to Gitanjali. Gitanjali, we saw in your AV that you are a versatile personality and you are interested in so many things, but then we would like to hear from you only about your passion. So, my name is Gitanjali, as you said, and I take interest in Kathak. So, I learned Kathak for 1.5 years, but because of the transportation problem and thing, I could not continue. And also, I wanted to concentrate on my studies more. So, I just stopped it. I said I'll continue it later. So, I take interest in Kathak. Then, I am a kind of introvert person when it comes to sharing feelings. So I prefer literature over that. I'm not much of a socializer. Though I have worked on social media platforms, I was a social media influencer, and I feel I've been fortunate enough to get to what I wanted. I've been lucky enough. So whatever I ever wanted in my life, I got it. So though I was a social media influencer, but when it comes to expressing feelings, I take a hide behind literature and classical dance form, that is Kathak, and that is all. And there are quite a few hobbies too. Like I got a little interest in print modeling, so I did that. And when I discovered few applications on which we can depict our art and talent, I worked on them. I got in contract with them, so I worked for them as well. After that, in my second year, it's kind of not so easy to put in words all of my feelings. So that, and whenever I feel
kind of not so good. I prefer like playing ukulele or gardening or making compost and these kind of things. And that is all, maybe. तो तुमने कहा कि तुम इंट्रोवर्ट हो और तुम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए लिटरेचर का सहारा लेते हो, ठीक है? तो कौन सा ऐसा लिटरेचर है जो या लिटरेचर में कौन से ऐसे राइटर्स हैं या कौन सी ऐसी बुक्स हैं जो जहां पर तुम्हारी फीलिंग्स को स्पेस मिलता है, तुम्हें ऐसा लगता है? सर किसी एक का नाम लूंगी तो सबके साथ नाइंसाफी होगी। जैसे कि अगर हम बात करते हैं गजल की, तो जैसे ही मैंने गजल बोला होगा लोगों के दिमाग में साहब मिर्जा गालिब आते हैं। सर गुलजार साहब हैं, फैज अहमद फैज जी हैं, उन्होंने नज्म लिखी है मुझसे पहली सी मोहब्बत वाली, तो बहुत अच्छी है। तो कुछ में बेसिकली मुझे ये सारी गजल्स और पोइट्री, ये सब लिटरेचर इसलिए इतना पसंद है क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स कोटेशंस। लाइक आपने 2 लाइनें बोली और पूरी बात कह दी, सो इट्स लाइक मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है कि मुझे इतना बड़ा पैरा नहीं बोलना पड़ेगा, सिंपल 2 लाइन और पूरी बात हो गई, क्या बात। तो ऐसा वाला है करके, so yeah, and yeah, that's it sir, I think। तो तुमने बहुत बड़े नाम ले दिए, फैज अहमद फैज का नाम सर लिया। इतना तो मेरा, मुझे नहीं लगता, सॉरी टू इंटरप्ट सर, पर मुझे नहीं लगता अभी उस पॉइंट तक हम पहुंचे हैं कि हम उन्हें अच्छे से समझ पाएंगे। हम अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं क्योंकि अभी हम है ही कितने 20-30 साल के बच्चे हैं, तो जिस तरीके से हम इंटरप्रेट करते हैं तो हम जैसा समझ पाते हैं बस वैसा समझते हैं। अच्छा ठीक है, चलो अच्छा लिखे गए हैं। चलो, तुम 20 साल में जितना समझ पाई हो उसके आधार पे मुझे बताओ कि फैज अहमद फैज की पोइट्री किस तरह की है और गुलजार की पोइट्री कैसी है और उसमें तुम्हें क्या ज्यादा पसंद? सर आई स्टार्ट विद गालिब साहब, तो मिर्जा गालिब साहब, तो उनका मुझे बहुत सारे अच्छे हैं, उनमें से एक बहुत अच्छा लगता है, बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता शबो रोज तमाशा मेरे आगे। तो मतलब 2 लाइन में उन्होंने पूरी लाइफ डिफाइन कर दी कि लोग आर्टिकल्स लिखते हैं 200 वर्ड्स के, इन्होंने बोला बाजी चाहे अतफाल यानी बच्चों के खेलने का मैदान है दुनिया मेरे आगे, होता शबो रोज यानी सुबह से शाम तमाशा मेरे आगे। तो ये जो बोल दिया ना, सो 2 लाइनों में पूरा कंप्लीट कर दिया सेंटेंस। Whereas I also take interest in reading books, so I have read this book recently called Ikigai. It's a Japanese culture of living a happy life, long happy life. So उसके अंदर वो पूरी book है about living a life, and वो book and these 2 lines are like same चीजें बताने की कोशिश कर रही हैं, but you can see the content, like book is so heavy, like not so heavy, but वो एक book है and these are 2 lines. So yeah. तो कैसे तुम चूज करती हो पोइट्री में, प्रोज में, कौन सी किताब पढ़ोगी? कोई भी जो हाथ लग जाती है पढ़ लेती हो, या तुम्हारा कोई सेलेक्टिव अप्रोच है कि तुम्हें यही किताब पढ़नी है या इस ऑथर के लिखा हुआ ही पढ़ना है? कैसे करती हो? सर इसका श्रेय तो पूरी तरह पापा को जाता है, क्योंकि उनको भी बहुत पसंद है गजल सुनना और ये सब करना। जगजीत सिंह साहब की गजल और मेहदी हसन साहब को सुनना बहुत पसंद है मेरे पापा को, तो वो सुनते रहते हैं और उन्हें जो भी अच्छा लगता है ना, हम लोग जैसे 10 मीटर की दूरी पे होते हैं ना, तो हम लोग व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं, लाइक पापा मुझे भेजते हैं कि तुम ये सुनना, तुमको बहुत पसंद आएगा। तो पापा जो मुझे रेकमेंड करते हैं उसी से मेरा बेस बना। जैसे एक गजल होती है, गजल या फिर गजल के अंदर बहुत सारे शेर होते हैं, तो जो शेर होता है उसका पहला लाइन होता है, उसको मतला बोलते हैं, कि वो होराइजन होता है कि जिससे पूरी गजल तैयार होती है। तो वो मतलब एक तरह से मेरे पापा मुझे प्रोवाइड करते हैं कि उन्होंने एक करके दे दिया, उसके बाद फिर मेरा ऐसा है कि जो मुझे पसंद आता है ना वो ऐसा, सर ऐसा नहीं है कि मैं सिलेक्टिवली रीड करती हूँ। हाँ, बस जो थोड़े प्रोमिनेंट लोग हैं, जो दिग्गज लोग हैं, उनका जितना लोग लिख के गए हैं, जितना मैं पढ़ पाती हूँ उतना मैं पढ़ लेती हूँ। तो लिखती नहीं हो, सिर्फ पढ़ती हो? सर मैं लिखती हूँ, पर वो ऐसा है जो मैं किसी को बताती नहीं करके। जैसे मुझे जर्नलिंग करना बहुत पसंद है, मुझे कुछ भी अगर मेरा मन करेगा लिखने का तो मैं एक दिन का पूरा जर्नल कर सकती हूँ, मेरा मन नहीं करेगा तो मैं नहीं लिखती हूँ, ऐसे करके। अभी रिसेंटली क्या लिखा तुमने? सर रिसेंटली मैंने क्या लिखा, ऐसे तो सर बोलना मुश्किल है क्योंकि अभी कुछ महीनों से नहीं लिखा है। लिखती हूँ तो किसी को ऐसा है कि अब डिजिटल का जमाना आ गया है, तो डायरीज की जगह नोटपैड हो गए हैं, बट फिर भी मेरे पास इतनी सारी डायरियां भर के रखी है, आधी ऊपर है आधी यहाँ पे है। तो इस आधे वो नोटपैड में होंगे कि जब ख्याल आता है तो हाथ में डायरी नहीं होती है उस वक्त,
तो इसलिए नहीं, मैं अभी वहाँ पर अभी देख लेती हूँ। अभी तो तुम एक लाइव प्रोग्राम में हो, तो जो नोटबुक ऊपर और नीचे रखी है वो तो उपलब्ध सर नहीं तो हो नहीं हो सकती। पाएगा, जो नहीं यहाँ सर। पे है उस पे से बताओ। सर मुझे, मैंने बताया ना कि जो मैं लिखती हूँ वो मुझे याद नहीं रहता, जो मैं पढ़ती हूँ मुझे वो याद रहता है। तो आई एम सो सॉरी कि मैं आपको वो कुछ मतलब बता नहीं पाऊंगी, वरना मैं कुछ जो भी लिखती हूँ तो वो ऐसे ऐसे शेयर नहीं कर पाती, मतलब करना अच्छा नहीं लगता। वो बस मेरा कुछ, वो मेरा पर्सनल स्पेस है, तो मैं उसको इसलिए लिखना पसंद करती हूँ। तुमने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि तुम लकी हो और जो चीजें तुम पाना चाहती हो वो सारी तुम्हें मिल गई। तो अब यस आगे क्या करोगी? जो चाहती थी सब मिल गया, फिर आगे? सर। सर सर इंसान की नीड्स अनक्वेंचेबल है, कि इंसान को जितना मिलेगा ना उसको कम ही लगता है। तो ऐसा है कि कभी ना वो एक फुल पॉइंट तक पहुंच ही नहीं पाता है। एंड ऐसा अभी तक जो मैंने चाहा था वो मुझे मिला, मतलब जो मैं चाहती थी लकीली उतना मैंने शायद राइट अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क भी मैंने पुट इन किया, शायद कि मुझे थोड़ा मिल पाया। बट अभी क्या है कि सेकेंड ईयर खत्म है सेकेंड ईयर खत्म हो चुका है, थर्ड ईयर में आ चुके हैं। इसके बाद कुछ करना है लाइफ में। तो इस एक साल में मुझे अपने आप को डेवलप करना है। देयर इज सो मच ऑफ कंटेंट इन द वर्ल्ड, बहुत कुछ है, मतलब पढ़ने को, लिखने को, देखने को, और वीडियोस, मूवीज। बट हम क्या लाइक ग्रास्प करते हैं वो हमारे ऊपर है। सो इसीलिए इस एक साल में आई वांट टू बिल्ड माय पर्सनालिटी मोर, और मैं खुद पे थोड़ा और काम करना चाहती हूँ। जैसे कि इस ईयर हमारा डिजिटल मीडिया मार्केटिंग है, दीपिका धवन मैम पढ़ा रही हैं। सो उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। शुरू में भी मैंने सोचा था इसके बारे में, बट उतना ख्याल दिया नहीं इसको, पर अब फिर से दोबारा वो ख्याल जागा है। तो फिर से मैं पढ़ रही हूँ, मैम जितना पढ़ाती अच्छे से समझती हूँ, और कोशिश कर रही हूँ कि कुछ इससे अच्छा निकल पाए। सर एक छोटी सी चीज़ और शेयर करूँगी, जो इकिगाई मैंने बुक पढ़ी है, वो जापानीज वे ऑफ लिविंग अ लॉन्ग हैप्पी लाइफ। उसके अंदर एक वेन डायग्राम है। वेन डायग्राम 4 सर्कल होते हैं, ऐसे 4 सर्कल वाला वेन डायग्राम है। उसमें है अबाउट लाइफ, कि तुमको करना क्या पसंद है, तुम क्या करने में अच्छे हो, तुम्हें क्या चीज़ पे करती है, और उस चीज़ को करने से दुनिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इन अ गुड वे। तो इन चारों का अमेलगमेशन जो पॉइंट होता है, दैट इज इकिगाई। सो दिस ईयर फॉर मी इज फाइंडिंग माई इकिगाई। सो इसीलिए मैं बस उसी पे वर्क कर रही हूँ। तुमने तो अभी इतनी कम एज में ही काफी ज्ञान अर्जित कर लिया, तो आगे का रास्ता तो काफी आसान हो नहीं गया फिर सर, तो। सर ये इतना कुछ है भी पढ़ने को, हम तो बस थोड़ा बहुत देखते हैं, जितना हमको मिलता है हम उतना देख लेते हैं बस। तो यही Okay. है। So moving on to Shreya. Shreya, you have been listening to both of your seniors, but I will ask the same question to you. I mean, though we saw in the AV as well, but then it would be better if you express yourself with regard to your interests, passions, etc. Yeah. हेलो सर। एंड सर मतलब वैसे ऐसा कुछ मैं कह नहीं सकती हूँ कि मेरा ये लाइन ऑफ पैशन है या ये मेरा सेंटर ऑफ अटेंशन है, ऐसा कुछ नहीं है अब तक। और मुझे लगता भी नहीं है कि अभी आने वाले टाइम में आई एम गोइंग टू बी वेरी श्योर अबाउट व्हाट आई वांट टू डू। बट हाँ, one thing which is going to remain constant for a longer period of time is my urge to learn and to explore. मुझे कुछ भी मिल जाए मुझे वो करना है। अगर मेरे सामने नॉवल रख दी किसी ने तो नॉवेल्स को तो मैं छोड़ती नहीं। मुझे वो अगर एक दिन में ख़त्म करनी है तो करनी है, और अगर मेरे सामने मूवीज़ रख दो तो मुझे वो ख़त्म करनी है। मेरे सामने कुछ भी होगा मुझे करना है, वरना फिर कीड़ा कहो या कुछ भी कहो मुझे मचने लगता है कि नहीं ये कैसे, नहीं ये कैसे छोड़ दिया, तो मुझे करना है। तो सर बस इसी एक अर्ज के साथ चल रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचे। तो पिछले पिछले एक साल में क्या क्या किया वो बताओ। सर कॉलेज में अभी तो एक साल में सर, क्योंकि मैं आउटसाइड दिल्ली से हूँ, तो उस एक साल में पहले के 3 महीने तो मुझे सेटल होने में लगे हैं। कहाँ से हो तुम? सर सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। ओके। तो सर पहले के 2-3 महीने तो मुझे यही समझने में लगे हैं, सेटल होने में लगे हैं कि हाँ ठीक है, अब घर से बाहर है, अब खुद रह रहे हैं, अब ये करना है, ऐसे करना है। उसके बाद फिर जब एक सेटलमेंट आई, उसके बाद फिर कॉलेज में एग्ज़ाम्स हुए, फिर क्लासेस अटेंड करी है, एग्ज़ाम्स दिए हैं, और मे बी फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मैंने एग्ज़ाम्स को बहुत सीरियसली दिया है। मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया था कि इतनी पढ़ाई तूने कैसे कर ली। सो BJMC इज़ समथिंग जो मुझे करना था, तो इसको बहुत सीरियसली लेके चल रहे हैं। उसके बाद फिर
कॉलेज में इवेंट्स हुए, इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया, फोटो वॉक्स हुई हैं, वहाँ पे गए। उसके बाद सर कोरोना आ गया, घर पे आ गए, कुछ हो ही नहीं पाया उसके बाद। तो कोरोना काल में क्या किया 4 महीने में? हाँ सर, लॉकडाउन की थोड़ी प्रोडक्टिविटी पर्सनल ग्रोथ पे लगाई, बिकॉज दिस वाज माय फॉरएवर कंप्लेन हर किसी से, दैट आई एम नॉट गेटिंग टाइम फॉर माई सेल्फ, आई एम नॉट गेटिंग टाइम फॉर माई सेल्फ। एंड अब इतना टाइम मिल गया कि पर्सनल ग्रोथ पे मैंने इन्वेस्ट करा है टाइम को। आई हैव लर्नड सर्टेन थिंग्स जो मुझे करनी थी। मैंने अपनी क्या क्या किया? क्या कैन यू इलैबोरेट कि क्या क्या किया तुमने अपनी ग्रोथ के लिए 4 महीने में? सो मतलब जैसे मैंने बताया, नॉवेल रीडिंग इज माय पैशन। और क्या कौन कौन से नॉवेल पढ़े अभी तुमने? सो मेरे फेवरेट ऑथर्स हैं, तो उनकी नई नई नॉवेल्स आई थी। निकोलस स्पार्क्स हैं, जॉन ग्रीन है, तो उनकी नई नॉवेल्स आई थी जो मैं नहीं पढ़ पाई थी ड्यू टू कॉलेज, तो वो मैंने कंप्लीट करी है। मूवीज कंप्लीट करी है अपनी। एंड उसके बाद फिर सर मतलब मूवीज कंप्लीट किया मींस यू आर फॉन्ड ऑफ वाचिंग मूवीज? यस सर, लाइक तो ये जेनेटिक है थोड़ा सा, पर हाँ। जेनेटिक क्या मतलब? तुम्हारे पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा फिल्में देखते हैं? सर बहुत ज्यादा, मेरी पूरी फैमिली बहुत फिल्मी है, बहुत ज्यादा है। So what are the latest films that you watched? तो सारी देखी अभी तो, जितनी भी आई थी बॉलीवुड और हॉलीवुड। अभी तो नेटफ्लिक्स सबसे ज्यादा अगर कुछ चल रहा है आज के टाइम में तो वो नेटफ्लिक्स चल रहा है। तो सब बस बिंज वॉचिंग चल रही है हमारी, तो पूरी फैमिली की एक साथ, तो परिवार। नेटफ्लिक्स पे क्या देखा? सर कुछ नई मूवीज है कि पेरेंट्स को दिखाई, क्योंकि उन्होंने कुछ मूवीज जो थी जब मैं गई थी तो उनकी एक साल में स्किप हो गई थी। तो बर्ड बॉक्स थी, क्वाइट प्लेस थी, तो वो सब मैंने उन्हें दिखाई। उनका देखो आप लोगों ने क्या मिस कर दिया मेरे चलते। फिर हमने वो सब देखा। कुछ और भी अच्छी अच्छी मूवीज आई थी, गुलाबो सिताबो आई थी, तो हमने वो देखी सबने। एंड उसके बाद सर मैं कुछ अपने पर्सनल काम में बिजी हो गई। आई एम वर्किंग ऑन अ पेज, तो फिर फ्रेंड्स के साथ उस पर हम काम कर रहे हैं। आई एम श्योर मैं रिसेंटली उसको लॉन्च कर दूँगी, सो आई एम वर्किंग ऑन इट। Okay, so moving on to Saket again. Saket, what will you tell us about your family and parents and the support that you would have been getting from them? Unmute karo, Saket. हाँ जी सर। हाँ, तुमने सवाल नहीं सुना मेरा? मैंने पूछा कि what kind of support you have been getting from your parents and other family members? सर जहाँ तक मेरे फैमिली मेंबर्स की बात है तो सर मुझे अभी तक इस मामले में मैं बहुत ज़्यादा लकी रहा हूँ कि मुझे किसी भी चीज़ के लिए प्रेशराइज कभी नहीं किया गया है। मैं अभी तक जो चाह रहा हूँ मेरे साथ मैं वो कर पा रहा हूँ, तो कभी किसी चीज़ के लिए मुझे रोका टोका नहीं गया है। तो सर बाकी जहाँ तक मेरे पापा की बात है तो वो मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, मैं कुछ भी उनके साथ शेयर कर सकता हूँ। वो भी अपना कोई भी प्रॉब्लम हो वो मेरे साथ शेयर करते हैं। तो इन सब मामलों में मैं बहुत ज़्यादा लकी रहा हूँ। तो मुझे हर तरह से मैं अगर लाइफ में कुछ भी करूँ मुझे पता है कि मेरे पास मेरा सपोर्ट सिस्टम रहेगा। And what about your brothers and sisters? सर मेरे 3 बहन हैं, मैं एक सिंगल भाई अकेला हूँ, तो मेरी तीनों बहन में मुझसे बड़ी हैं। तो सब एक छोटा भाई हूँ, तो हर जगह से लाड़ प्यार और सपोर्ट तो हमेशा रहता ही रहे। तो लकी हो तो तुम्हारे प्रोटेक्टेड लाइफ है पूरी तरह से तुम्हारी। Okay, so moving on to Gitanjali, what will you tell us about your parents? Already you were telling कि सारी गजल वहां से आ गई, तो और क्या क्या है जो वहां से आया और किस तरह की रिलेशनशिप है तुम्हारी पेरेंट्स के साथ, किस तरह का सपोर्ट है जो तुम्हें मिलता है? So actually, मेरा relationship with my parents is awesome. Okay, so my parents and my younger brother, these are the 3 pillars of my strength. I mean, मेरा younger brother मुझसे छोटा है obviously, but उसने मुझे पाला है कहीं ना कहीं, क्योंकि when I used to study during my 9th 10th standard, तो 9th 10th हो गया, अभी 11th तक अभी भी जैसे मैं पढ़ती हूँ, तो वो मेरे लिए खाना बना के, मतलब जो भी होता है सैंडविच बना के लेके आना, पानी देना, सब कुछ बिना बोले सब, मैं कुछ उस पर हुक्म नहीं चलाती, पर वो मेरी इतनी हेल्प करता है। प्लस माई मदर हैज़ बीन माई बेस्ट फ्रेंड टिल डेट। आई टोल्ड यू सर, मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, तो सिर्फ एक ही इंसान है, एक ही इंडिविजुअल है जो पूरी दुनिया में मेरे बारे में
अच्छे से जानते हैं, मैंने समझता दैट इज माई मॉम. Then comes my dad. वो तो मेरे को motivate करते हैं क्योंकि sometimes it happens when you study a lot or you're just thinking too much, you get demotivated sometimes. You draw conclusions out of nowhere. So he helps me with that. He helps. He's my third pillar of my strength. So these three play a very vital role in my life. Yes, sir. That is. तो तुम इतनी एक्सप्रेसिव हो तो तुम बार बार ये क्यों बताती हो कि तुम इंट्रोवर्ट हो? So because when it comes to personal feelings, for example, what do I feel? If I'm feeling itchy right now, if I have itch in my back, so I'll not tell anyone if I have it or not. So when it comes to, you can conclude me as an ambivert who has qualities of both introvert and extrovert. So when it comes to the topics to which you have to express your feelings, somehow, like not your personal feelings, then I can be a good speaker, maybe a good speaker. But when it comes to my own personal stuff, discussing my problems with someone or something like that, then it's a kind of introvert thing with me. So I don't prefer discussing that. अच्छा, मतलब तुम्हें अगर तुम्हें टॉपिक दे दिया जाए तो तुम अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर सकती हो. Sir, out of all of my context, you just picked up that. Okay, so I don't know. I can try, but I cannot say that I will definitely, but I can try maybe. So, I mean, as far as this final year exam is concerned in the universities, yet no policy decision has been taken and the matter is in the Supreme Court. Supreme Court was supposed to deliver its judgment today, but then it deferred the judgment. So what do you think? The final year exams should take place or should not take place? It's a very, okay. The final year exams. So since it's a Corona ka kaal, and so there are two perspectives. I don't know. In my opinion, What is your perspective? Okay, sir. What is my perspective? So I think there are authorities assigned to deliver what is the right thing to do, the justice, and I believe in it. Like, they will do justice with the college students as well. So whatever they'll decide, it will be for the goodwill of the students. If they want to conduct the exam, then it will be, I think it's good because they want कि हमारा देश का विकास चले. If they don't want to conduct the exam, so maybe because of Corona's extreme cases. You may be saying this because you are not affected. अगर मैंने यही सवाल तेजस्वी से साकेत से पूछा होता तो उसका जवाब different होता, because he is affected by this. Since you are not affected, yes, so you are playing. Yes, you are playing a safe game. Then you are not answering the question. So I can really feel what they are feeling, because most of my also classmates are out of Delhi, so they cannot give exams if we were in third year, if we were in the final year. So yes, sir, it's a matter of concern, and I think if we can see it, then the person who has authority to find justice can also see that. So they will definitely do something that is better for the betterment of both our society and children. हाँ, लेकिन ठीक है, अभी as a young person you should not depend too much on the decision taken by the authorities, because a lot of time it happens that they take a wrong decision, and if you abide by that, that might be damaging to you and the society. So I cannot really recall any kind of that thing that really kicked me in, because if something like that would happen with me or personally or in any case, so yes, I would agree with you. But like, for example, the Sushant Singh's case, that is somehow personally affecting a lot of people, even me. So I just how it's affecting you? So because he was an inspiration for many of the youth and people. Because inspiration in what sense? So inspiration in following your dreams and never doubting yourself and things. So he was a great inspiration. So because he secured all India rank of 7 in AIEEE, then he moved on to dancing, then he moved on to theatre, then he moved on to Bollywood, like for television, then Bollywood.
Like it's a long journey, long journey. So many of our eyes are on that case. So I firmly believe that justice will prevail because I have trust, I have faith in them. Like आज भी सर वही बात है ना कि कुछ भी होता है हम सबसे पहले न्यूज़ में देखते हैं कि कोर्ट का क्या डिसीजन आया, कि कोर्ट ने क्या बोला, यानी कहीं ना कहीं एक भरोसा तो है ना सर, तभी तो हम शायद बोलते हैं ये चीज, तो इसलिए Okay. ठीक है गीतांजलि, so moving on to Shreya. Shreya, what will you tell us about your family? So I have a very big family, but a bit differently. So I have my mother, father, a younger brother who is 6 years younger than me. And then I have 7 to 8 humans who barely fall in that category. So these are my friends who actually are my family, who stay in my home, who live here. And they actually are my family because they are not like family, they are my family. So my mother and my father, they all just love them. They consider them as their children only. And when it comes to support, then मतलब सर बचपन से कभी भी मम्मी पापा की साइड से या पूरे खानदान की साइड से कभी कोई प्रेशर नहीं आया कि पढ़ाई करो या ये करो या वो करो, कभी भी नहीं आया. So it has always been very different for us. And whenever someone asks me this question that have your family supported you, I feel myself like, okay, wow, this answer is going to make that person shocked because my parents have always been like, "Tere ko jo kar." They have this one pet dialogue. Whenever I come to them that I have this idea, should I do this? "Tujhe jo karna." This is their pet dialogue. And then there are my friends. Then when I tell them, they are very supportive. They are my best support and my best critic. Like they can even support me and motivate me, and they can even pull me down to the ground that you stay here, you're thinking too much. And that is in college, wherein I made friends there, and then there's PG mates. So even there, I have 7 to 8 humans who barely fall in that category. They are my second family. So Saket, what will you tell us about your friends, teachers in the college? सर ये एक्सपीरियंस तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहा. सबसे पहले मैं फैकल्टी मेंबर्स की बात करता हूँ. इतना ज़्यादा सपोर्टिव फैकल्टी मेंबर्स मतलब स्कूल में भी मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया था. बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं. आप कोई भी प्रॉब्लम लेके जाओ, कोई ना कोई सॉल्यूशन आपको ज़रूर मिल जाएगा वहाँ से. ये हमेशा से ये चीज़ रही है. आप चाहे वो एकेडमिक्स के बारे में हो, आपके पर्सनल लाइफ के बारे में हो, कुछ भी हो, अगर आप उनके पास जाते हैं तो कोई ना कोई सॉल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा. और जहाँ कुछ टीचर्स हैं जैसे कि बाला मैम, पर्सनली मैं उनको कभी बोल नहीं पाया क्योंकि थोड़ा ज़्यादा फिल्मी लगता है, लेकिन पता नहीं क्यों डे वन से मुझे मतलब एक माँ जैसी फीलिंग आ रही थी उनसे. तो उनसे बात करके अच्छा लगता है. अभी भी मैं उनके टच में हूँ. अगर कोई भी मेरी वीडियो बनती है तो मैं उनको लिंक ज़रूर भेजता हूँ. संचिता मैम है, दीपिका मैम है, जिनका नंबर मेरे पास है मैं सबको भेजता हूँ ताकि उनका कुछ फीडबैक्स आए. और वो बताते भी हैं कि यहाँ पे ये चीज़ इम्प्रूव हो सकती है, यहाँ पे तुम ये चीज़ जो करते तो और ज़्यादा बेटर हो सकता था. तो अभी तक मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है और होपफुली आगे भी मिलता रहे. जहाँ तक फ्रेंड की बात है तो पूरा क्लास मेरा फ्रेंड है. सबके साथ मेरी अच्छी बॉन्डिंग है. किसी के साथ मतलब रिलेशन खराब नहीं है, सबके साथ अच्छी है. इसमें स्पेशली आदर्श, साक्षी, गजेंद्र, ज्योति भूषण था. अफसोस है वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन फिर भी अभी भी आदर्श, गजेंद्र, साक्षी, हम चारों हमेशा साथ में रहते हैं. सटीक बात में भी हम साथ में काम कर लेते हैं. तो ये इन सब के साथ रहकर अच्छा लगता है. तो ये मेरे बेस्ट फ्रेंड है उदाहरण. So thank you Saket. Now Geetanjali, तुम तो इंट्रोवर्ट हो, तुम्हारे फ्रेंड्स तो कम ही होंगे आई बिलीव कॉलेज में कि हैं? Sir, I know few people in our college, in our class, but I have just 2 friends, Yukta and Shivani. And from the day one, we have been together, despite of all the things that have happened, like anything, कि course भी बदल गया, फिर जैसे जो electives हमारे change हो गए हैं या कुछ है, जैसे इस बार हुआ है. So that, and also few people. So Yukta and Shivani are the 2 pillars in the college strength वाला, because they are always like कि मैं अगर मुझे थोड़ा सेल्फ डाउट होता है तो दे हेल्प मी कि तू कर सकती है, यू कैन डू इट गीतांजलि, डोंट थिंक मच, जस्ट पुट इन योर एफर्ट्स. सो दैट, एंड प्लस few more people, Ishita Tadial and Tusharika,
And I'm sorry if I forget any name, but if some of these people नहीं as नहीं, उन well. लोगों के उनके सबके नाम ले लो जो तुम्हें तो सुनने के लिए इस प्रोग्राम में भी मौजूद हैं. Sir, there are many like Suraj, Kyari, ये सब से थोड़ी बहुत बात होती है. Rahul Gurchan, few of the people जिनसे बहुत I can connect my vibe with them. Like होता है ना जैसे कि आप बात कर सकते हो उनसे किसी टॉपिक पे. So these are those people जिनसे कभी हेल्प मांगोगी तो कभी मना नहीं होती है. And I just say I want to say them कि same they can expect the same from me. मैं कभी बोलती नहीं, कभी ज्यादा बात नहीं करती, ना चैट पे ना कॉल पे. मिलना तो अभी हो ही नहीं पाएगा, कोरोना काल है. So but I just wanted to give this message. So yes. And what about teachers? The teachers, the faculty is amazing. First, so the first teacher I had interaction with was Atul sir. So I think Atul sir and Harjeet sir and Pramod sir. These three are the teachers. So when I used, he would call me up and tell me कि what you can improve. So I felt very grateful to have these kind of teachers. I went to Pramod sir in the staff room and asked sir, sir, I'm very tensed. What should I do after my college? Then I was coming in second year, just in second year, and I was in second semester. We had just given exam. So sir said, "अभी कर लो तुम ये, तुम्हें third year आते आते समझ आ जाएगा. बाकी मैं यही हूँ. Whenever you need help, you can call me up or you can come to me anytime." And I was like, "Thank you so much, sir." And same goes for Atul sir. So sir and all of the faculty and yes sir. So it's been a great experience. Shreya, what will you tell us about your friends and teachers? So DME faculty has changed the definition of teaching for me because I come from a science background and then a missionary school. Because a convent school और science background का जो combination है ना वो बहुत अलग होता है. वहाँ के टीचर्स भी बहुत अलग होते हैं. तो फिर वहाँ से जब सीधा DME में आए और यहाँ पर इतना फ्रेंडली एनवायरनमेंट एंड जैसे मैंने आपको बताया 2-3 महीने सेटल होने वाला. And college really helped me by that. Be it the Kritika ma'am, be it the Bala ma'am, so you yourself, and then Supriti ma'am, Yash ma'am, Sachin sir, everyone was so helpful and so friendly towards you that even if you bring them problems outside college, they're like, don't worry, you just take a week or two and it'll be all normal. So बहुत अच्छा है. So, Saket, any final thing that you want to say? Because I believe more or less your career is graph is set. I mean, wherein you will be more into TV news or you must be owning something on. Whether you want to add something in brief? सर अभी अब मैं सीधे फील्ड में जाना चाहता हूँ क्योंकि रियल वर्ल्ड जो है उसको मैं फेस करना चाहता हूँ. तो अभी यही है कि सर मैं अभी जाके फील्ड में काम करूं, वहाँ पे क्या माहौल है उसे एक्सपीरियंस करूं. तो अभी बस उधर ही, लेकिन अब कब हो पाएगा ये सब चीजें नॉर्मल पता नहीं. नहीं होगा. There is always a hope. So Geetanjali, anything that you want to say in one line? I would like to conclude with the quote by it goes like, an investment in knowledge pays the best interest. So I think that sums it up. That's good. Shreya, what would you like to say finally in one sentence? So there's one thing which I should say to the viewers who really think that who are having any thoughts that they should come to DME, please come. We will be your seniors. और हम बहुत अच्छे लोग हैं. आओ. Okay, good. So I mean, with all this positive thinking, positive spirit, we move towards the conclusion of the program. But before concluding, I would like to thank to my team members, particularly my creative and the production team, which comprise Deepika Dhawan, Sumantra Sarthi Das, and Ritik Ghosh, and of course, Dr. Susmita Bala, and the entire team of DME Media School, who together helped me in realization in the execution of this program. Thank you all. And thank you, Saket, Geetanjali, and Shreya for making this program so lively and interesting. Thank you all. Thank you, sir.